Okay, friends, so very good morning to all of you. So, you all have started the journey to learn about teaching learning process. So, you might have covered a part of the journey. So, today we'll go ahead and we'll talk about the learner's learning process and factors influencing learning. So, what kind of a teaching learning uh, environment should be created which can fulfill our target? As a teacher, what is our target? We have to train the students, and we have to train such students in effective and efficient manner, so that in a given time period they learn, they practice, they revise, and they become a good, or they become proficient in that particular subject you are teaching. So from that point of view, what we have to do, so today we'll talk about the learning and learning process. So under this, I will start in a different way, that what is the target given to us as a teacher by education and training, what we want to achieve. Why what we want to achieve, that is important. So as a teacher, the target given for the education and training of the students, and there is a national education policy. It also talks about holistic education. That is, what is that holistic education? Then we'll understand the learners and their backgrounds. Who are the learners? In our case, it's the polytechnic students, and they are coming from the diverse background. Then we'll talk about learning process, how the learning takes place. Then what are the factors affecting learning or influencing learning? What are the 10 good qualities of a teacher which we should possess as a teacher, which become a dynamic teacher? And then we'll try to conclude. So, my dear friends, first and foremost, the target which we have given as a teacher, and that to the particularly in engineering education or technician education. So, what is the target given to us? So, it can be understood through this system approach. This whole concept is known as system approach. So, what is that system approach? All engineers or all the scientists, they have to follow this system approach. So we have to have some input. Then taking the input in the account, then we have to define the process. We have to develop a process, and finally, which can lead to a quality output. So हमारा मकसद क्या है कि कोई हमारे पास ऐसे इनपुट मिले हुए हैं, उसमें अपने कुछ प्रोसेस इस तरह से लगाए जाएं ताकि जो आउटपुट हो वो हमें परफेक्ट मिले. अब ये प्रोसेस इंडस्ट्री में भी लागू है. अब ये प्रोसेस ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए लागू होगा या नहीं लागू होगा, लेकिन बहुत हद तक ये इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. So what kind of the input we are getting? We are getting the students of the diverse background. They have the various socio-economic background. They are coming from the rural areas. They are coming from the lower middle class. They have certain attitudes, skills, and initial knowledge. But they have some attitudes as per their social behavior, as per the socio-economic conditions, cultural behavior, and they have certain skills at the school level or +2 level they have acquired, and they have the initial knowledge of the certain subjects. So with this attitude, skills, and knowledge, they are with us, and they have the particular behavior, particular way of expression. Some are introvert, some are extrovert, and all kind of people are there, diverse background. Now as a teacher, what kind of a process we have to undertake? We have to go for teaching learning exercises, so that we can have knowledge sharing, we can train them, we can become a guide and coach to them, and through that, time and again, we have to organize some industrial and exposure visit along with the practicals, and we have to give some assignments to judge their performance, and time and again we have to monitor their progress. So what is our main target? Main target is the capacity building of the students.
हमारा काम क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है स्टूडेंट्स के। और अगर हमने ये दो चीजें सही ढंग से समझा और किया तो देन विल गो फॉर अ क्वालिटी आउटपुट, जो हमें स्टूडेंट्स मिलेंगे या हम उनको ट्रेन कर पाएंगे। सो वी विल गेट अ ट्रेन्ड एंड वेल बिहेव्ड डिप्लोमा इंजीनियर, ये हमारा टारगेट है। एंड वेल ट्रेन्ड एंड वेल बिहेव्ड इंजीनियर्स, अब डिप्लोमा इंजीनियर आपको बनाना है। So whatever the attitude they had earlier coming to your institute or polytechnic, and in 3 years you have to process them so their attitude becomes positive towards learning and toward particular area of engineering or area discipline. They become positive to learn for learning, and they acquire certain skills and knowledge in that particular area so that they become proficient, and whenever they go for the world of work, go to world of work or any industries, they can perform better. So ये हमारा मकसद है। So input, process and output, कहने का मतलब इसको एक एग्जांपल के जरिए अगर समझना चाहते हैं, मान लीजिए एग्रीकल्चर में आपको क्वालिटी आउटपुट चाहिए, तो आपने क्वालिटी अगर इनपुट डाले, प्रोसेस भी आपने सही रखे, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोड्यूस मिलेगा, जिसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। So it depends on you that what kind of agriculture produce and agriculture system you need to adopt, and accordingly you have to have some kind of output. यानी कहने का मतलब, अगर आपने अच्छे बीज लिए, जमीन का चुनाव भी सही किया और सही क्रॉप्स लगाए, इसके बाद उसके नर्चरिंग की, उसको देखभाल सही ढंग से किया, तो आपका जो आउटपुट है अच्छा होगा, क्वालिटी आउटपुट होगा। और इसको मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक वे में उगाया तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आप इसको बाजार में फिर बेच सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, थ्रू दैट वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू अकॉर्डिंगली ट्रेन आवर स्टूडेंट्स इन अ सच अ वे सो दे बिकम अ प्रोफिशिएंट डिप्लोमा इंजीनियर। ये हमारा मकसद है। सो इनके एटीट्यूड में बदलाव आए, इनके स्किल्स में जितना हम चाहते हैं 70 to 80% इनके पास स्किल्स हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, और उस काम को परफॉर्म कर पाए जिसके लिए हम लोगों ने उनको तैयार किया है। So what is the focus of education by the different leaders at various places? Like Barack Obama, few years back, maybe 7-8 years back, before the last president. So he had a vision of and mission for their country, the school education, and he was interested to promote STEM. This is all STEM: science, technology, engineering, and mathematics. So this is for the United States of America. He proposed this model, and even our education minister repeated this slogan that can we work on it and we can promote science, technology, engineering, and mathematics in our secondary school system or even higher education system. So from that point of view, we have to adapt and we have to work on further. Apart from science, technology, engineering, what I feel, we are a country of agriculturists. A large number of farmers are with us. So we propose something different model for our country, where I find that agriculture is also an important subject, and economics and entrepreneurship taken together can be another input which is required for our country. So we have to have knowledge, or most of our students must have a knowledge about these 6 areas: science, technology, engineering, agriculture, mathematics, economics and entrepreneurship, and research. So if that orientation is given to most of our students, our development will be holistic, our development will be in all dimensions, and we can grow as a better economy. We can grow as a better economy. अभी तक पूरे देश भर में सबसे ज्यादा जो जीडीपी आती है हमारे देश में, वो किस सेक्टर से आती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारे हैं पूरे देश के, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का।
जिसमें बैंक है, हेल्थ सर्विसेज हैं, तरह तरह की टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है। तो सर्विस सेक्टर 55 से 56% लोगों को रोजगार भी देती है और जीडीपी का बड़ा हिस्सा उससे आता है। मतलब ज्यादातर लोगों को रोजगार सर्विस सेक्टर से मिलता है और उसमें जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो सर्विस सेक्टर में 55-56% है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 30% के आसपास है, 29-30% है और एग्रीकल्चर लगभग 17-18% का कंट्रीब्यूशन करती है। तो हमें अपने इकोनॉमी को इसी को ध्यान में रखते हुए अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि कौन सी जगह पर उनको जॉब मिलेगा, कि इंडस्ट्री में उनको जॉब मिलेगा, कि सर्विस सेक्टर में जॉब मिलेगा या सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब मिलेगा। अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रेन आवर स्टूडेंट्स। तो ये आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रेन आवर पीपल। So there is a quote, the highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence. So this is the quote by Guru Rabindranath Tagore ji. He said long back कि एजुकेशन का मतलब केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि हम किस तरह से अपना जीवन पूरी जितनी भी प्रकृति है उसके साथ हार्मनी के साथ हम जी पाए। इसमें यही एजुकेशन है और इसको हमें लर्न करने की ज़रूरत है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू टेक द एजुकेशन इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट activity which we have to perform. I would request, do not watch your mobile phone now. एक और कोट आप लोगों के समक्ष रखता हूं। प्रेमचंद जी एक बड़े सोशल और बड़े विचारक थे। उनकी जो पकड़ थी, क्योंकि वो खुद एक लोअर मिडिल क्लास से आते थे और गांवों देहातों से में रहते हुए इन्होंने जितनी भी लेखन का काम किया उसमें बहुत गूढ़ उन्होंने विचार रखे हमारे समक्ष। उनमें से एक विचार मुझे बहुत अच्छा लगा, आज उनका कोट में देख रहा था कि जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की नहीं। हमारी डिग्री है हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारे जीवन की सरलता। यानी हम जितने शिक्षित हों उतने सरल हों, सेवा भाव और नम्र हों, सेवा भाव से हम नम्र हों। अगर ये डिग्री नहीं मिली, अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई, तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। कहने का मतलब यू हैव टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग if you are getting educated. So that is the purpose of education, and we have to train our students in a such a way that they also become a good human being. So my dear friend, let us talk about teaching learning process. What are the things available in the teaching learning? सबसे पहले इसमें ये 3 बातें होगी। कोई कभी भी टीचिंग लर्निंग हम करेंगे तो एक टीचर होगा, एक स्टूडेंट होगा और कुछ सब्जेक्ट मैटर होगा। तो जो टीचर है उसके पास उस सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज होगी, वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होगा और सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उस पूरे करिकुलम को वो डिज़ाइन करेगा और उसको फिर बच्चों तक पहुंचाएगा। तो ये करिकुलम उन बच्चों तक पहुंचाने से पहले उसके ऊपर सिंथेसिस होता है कि भाई ये कितनी चीज़ें पढ़ानी चाहिए और कितना पढ़ाना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली वो सिलेबस तैयार किया जाता है। तो सिलेबस तैयार करने में अगर टीचर साथ में है और उसको इस बात का पूरा इल्म है कि ये सिलेबस किस लिए बनाया गया है, किस मकसद से बनाया गया है, तो वो जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, टीचर कैन प्रोवाइड अ राइट काइंड ऑफ अ लर्निंग टू द स्टूडेंट्स। बट समटाइम देयर इज अ गैप बिटवीन द curriculum maker and teacher who is going to teach. So there may be some gap also. So sometime what happens? Curriculum is made, but the teacher finds that it is not exactly happening in the classroom. वो curriculum तो बना दिया लेकिन उसके लिए साधन नहीं है और वो हम लोग कर नहीं सकते, या फिर उसकी वो सीक्वेंस में भी नहीं होता है। कई बार वो सिलेबस जब बनाते हैं तो वो सीक्वेंस में भी नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान में रख, हाँ, यूनिट में डाल देते हैं जिसका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता और हमें दिक्कत लगती है कि हम इसको कैसे, तो वो खिचड़ी बना देते हैं। सो एज अ टीचर देन यू हैव टू डिसाइड कि भाई इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए।
कि पहला कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए, फिर इसके लिंक करके अगला कौन सा पढ़ाया जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो लगता है कि रिडंडेंट है, जिसकी वैल्यू कम है, तो आपको भी उसी हिसाब से उसकी तवज्जो ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, कि कई चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं, वो बाई प्रोडक्ट होते हैं, वो मेन चीज़ नहीं होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको उसको जजमेंट करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू make your lesson plans, and so that the students are getting your viewpoint, and that should be in correct and sequential manner. So ये लर्निंग प्रोसेस में बिना स्टूडेंट्स के कोई बात नहीं बनेगी। तो ये तीन चीज़ें हमेशा होंगी, और स्टूडेंट्स हैं तो टीचर्स हैं, और टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स ही मेन क्लाइंट्स हैं। तो अगर स्टूडेंट्स को वो ध्यान रखेंगे तो उनका मेन काम ही यही है, मेन प्रोफेशन यही है कि टीचर्स के लिए जितने स्टूडेंट्स हो वो कम है। सो दिस वे this teaching learning process is a kind of a triangle, and in which we try to provide the knowledge to the students. If the subject matter is well designed, well planned, then it will be better for the students, and if it is also linked with the practical in a systematic manner, then the internalization among the students will be higher, and that is our purpose. अगर ये सारी चीज़ें ठीक हों तो स्टूडेंट सीखेंगे, और अगर सही ना हो तो स्टूडेंट उतना नहीं सीख पाएंगे जितने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या उनकी बैकग्राउंड है, what is their socio-economic and cultural background. Accordingly you have to work out your plans. What are their needs? क्या ये डिप्लोमा करने के लिए आए हैं, या फिर ये जबरदस्ती फंस गए हैं, या फिर किसी ने इनको गाइड नहीं किया। तो जो भी स्थिति में जैसे भी वो आपके पास आ गए हैं, नाउ आपको उनको समझने के लिए पहले उनसे बातचीत तो करनी पड़ेगी। फिर उनकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्लास में पढ़ाना शुरू करेंगे तो उनकी एबिलिटीज़ के बारे में भी पता लगेगा, और उनका इंटरेस्ट क्या है वो भी हमें पता करना पड़ेगा। सो उनके नीड्स, एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट को धीरे धीरे पहचानना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली हम उसमें हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप में से कोई कह रहे थे कुछ टीचर की हमारे सब्जेक्ट में तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो उसमें कैसे रुचि बढ़ाई जाए, उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कई बार कुछ सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स आमतौर पर उसको नेग्लेक्ट करते हैं, कि वो बोलते हैं कि दिस इज बोरिंग। वो पहले से ही उन्होंने अपने मन में एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि दिस इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, कि भाई मैथमेटिक्स को तो जितना भी कर लो ये मेरे काम का चीज़ नहीं है, मैं तो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता। तो जो बच्चे जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे उसमें कभी भी वो अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते। तो हाउ टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट्स, फॉर दैट यू हैव टू पिच सम न्यू आइडियाज। तो इसके लिए आप क्या करेंगे सोचिए। अब इसको समझने के लिए कि हाउ द लर्निंग इज बीइंग टेकिंग प्लेस, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, इसको समझने से हमारी बातें आसान हो जाएंगी। लर्निंग इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्लस पर्सनल फैक्टर्स। सो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो सराउंडिंग में हैं, एंड कुछ पर्सनल फैक्टर्स है जो इंटरनल फैक्टर्स है, जो उसकी साइकोलॉजी, उस व्यक्ति के साइकोलॉजी, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें उसको डिसाइड करता है कि वेदर ही विल बी अ गुड लर्नर और नॉट। अदरवाइज जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो भी इस बात को तय करेगा कि वो इस काम को अच्छे ढंग से सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। सो अगर स्कूल का क्लाइमेट अच्छा नहीं ना हो, स्कूल के सिस्टम अच्छे ना हो, स्कूल की फैसिलिटीज़ ना हो, वो भी अफेक्ट करेगी। और बहुत सारी अगर टूल्स, इक्विपमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, लैब्स ना हो तो वो भी अफेक्ट करेगी। लेकिन उसका जो पर्सनल बिहेवियर है, उसका जो लर्निंग एटीट्यूड है, उसके इंटरनल जो थिंकिंग है अबाउट दिस कोर्स और दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, अगर वो ठीक ना हो तो वो बात बनेगी नहीं। सो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल एज पर्सनल फैक्टर्स दोनों को मिलाकर अच्छी लर्निंग हो सकती है। तो दोनों विषयों पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग लर्निंग। एक व्यक्ति का एक इंटेलिजेंस उसमें कितना है,
ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। मोटिवेशन क्या है उसका, उसमें इमोशंस किस तरह का है, या फिर इमोशनलेस है वो व्यक्ति, उसमें क्या इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट के प्रति, जो सब्जेक्ट वो डील कर रहा है या पढ़ा रहे हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसके बिलीव्स एंड वैल्यूज क्या हैं, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, किस तरह से पढ़ता है, क्या समय देता है, कब वो समय देता है। ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी ताकि हम एक अच्छे ढंग से उस स्टूडेंट्स को तैयार कर पाएं। सो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस है ये वैरी करता है, हर एक व्यक्ति का इंटेलिजेंस अलग अलग लेवल पर है। सो आपको उसको जज करने के लिए इंटेलिजेंस के बारे में समझना चाहिए कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल गिवन, एक क्लास में वन स्टूडेंट, वर्षा इज ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास, Iqbal has the ability to memorize dates and years of historical events in a chronological order. उसके पास अलग एक क्वालिटी है। Radhika is very good in dancing. Sonu can produce sound of any bird and animal. Vishal is a good table tennis player. अब सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज है, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सबके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि वो बड़े इंटेलिजेंट हैं। वो एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो कितने इंटेलिजेंट है वो इनके मल्टी डायमेंशनल टैलेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। वो जो इंटेलिजेंस है इज अ मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वी कैन डिफाइन द इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू लर्न अबाउट, टू लर्न फ्रॉम, अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट विथ वंस इन्वायरमेंट। हम अपने आप को कैसे कोप अप कर रहे हैं और कैसे हम सारी चीजों को इंटरनलाइज कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, ये लर्निंग की बात है, ये इंटेलिजेंस की बात है। जो जितना इंटेलिजेंट होगा वो जल्दी से लर्निंग होगी उसकी, जल्दी से वो उसका रिस्पॉन्स देगा और आगे बढ़ेगा और उसको सीख कर उसको इंटरनलाइज करने की कोशिश करेगा। So what are the abilities the people have? Somebody have that adaptability to a new environment and or to changes in the current environment. कुछ बच्चे अडेप्ट कर जाएंगे, नए क्लास में गए हैं और प्लस 2 के बाद गए हैं पॉलिटेक्निक में और सारा नया सिलेबस है, तो उनको अडेप्ट कर जाएंगे। जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चे एवरेज होंगे वो जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, और जो पुअर होंगे उनको अडेप्ट करने में थोड़ा और भी समय लगेगा। द कैपेसिटी ऑफ फॉर नॉलेज एंड एबिलिटी टू एक्वायर इट, उनकी नॉलेज लेवल क्या है, क्या उनमें अब जो आप पढ़ा रहे हैं उसको एक्वायर करने की कैपेसिटी है, क्या उनका वो मैच्योरिटी लेवल है, जो आप चीजें हैं वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। सो कैपेसिटी फॉर रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड टू कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप, जो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आनी चाहिए जो सब्जेक्ट की, वो उनके दिमाग में है या नहीं है, और क्या उसके रिलेशनशिप्स को वो सही ढंग से समझ पा रहे हैं, क्या वो इस चीज को इवेल्युएट और जज कर सकते हैं। एंड कैपेसिटी फॉर द ओरिजिनल एंड प्रोडक्टिव थॉट, क्या कोई इसमें कोई ओरिजिनल थॉट और प्रोडक्टिव थॉट भी उनके दिमाग में आ रहा है जब ये सारी चीजें देख रहे हैं। सो एक इंटेलिजेंस जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एंड इन कंबाइंड वे इट मे बी टर्म्ड एज द एबिलिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो बच्चा किस तरह से प्रॉब्लम को समझता है, पहले तो समझेगा तभी सॉल्व करेगा। So first he understands the problem and then think about solving it, thinking, reasoning, relating to others, and you have to correlate with others and dealing with the emotions. So उसके जो emotions हैं पॉजिटिव हो तो ज़्यादा जल्दी सीखेगा, निगेटिव हो तो नहीं सीख पाएगा, और कुछ भी इमोशंस ना हो तो भी उसके सीखने में तकलीफ होगी। सो डेवलपिंग इंटरेस्ट, sense of right and wrong and living in consonance with the environment. तो ये सारी चीजों के फैक्टर्स को मिलाकर एक इंटेलिजेंस लेवल को हम चेक करते हैं। So it's a matter of subject of psychology that how to check the intelligence of a person. तो इस इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग कुछ अपने डिफिनेशन दिए हैं। तो उसमें से कुछ एक डेफिनेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 1916 में अल्फ्रेड बिनेट नाम के साइकोलॉजिस्ट ने पहले ये कहा
It's a kind of a judgment, otherwise called good sense, practical sense, initiative, the faculty of adapting one's self to circumstances, autocritic. वो व्यक्ति जो कि जजमेंट कर पाता हो, गुड सेंस और प्रैक्टिकल सेंस के बारे में डिफरेंशिएट कर पाता हो, उसके पास एक इनिशिएटिव हो और एक सर्कमस्टांसेस में वो ऑटो क्रिटिक भी हो, उसको हम इंटेलिजेंस का उसके इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से. Some other person has defined it as an aggregate or global capacity of individual to act purposefully. सारी चीजों को मिलाकर अगर वो पर्पसफुली एक्ट करता है तो वो उसकी इंटेलिजेंस अच्छी है. टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट. रैशनली वो सोच सकता है और फिर अच्छा काम कर सकता है, इफेक्टिवली डील कर सकता है गिवन एनवायरनमेंट में. सो another person defines it as the resultant of the process of acquiring, storing in memory, retrieving, combining, comparing and using the new context, information and conceptual skills. So more or less इसी तरह पे आगे आने वाले दिनों में जितने भी कंप्यूटराइज सिस्टम बन रहे हैं आपके मेमोरी को ध्यान में रखते हुए इसी तरह से बने हुए हैं कि किस तरह से वो प्रोसेस कर रहा है, स्टोर कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है, उसको रिट्रीव कर पाता है कि नहीं कर पाता, कंबाइनिंग, कंपेयरिंग. सो ऑल सच थिंग्स आर रिलेटेड टू आवर इंटेलिजेंस. किसी ने एक छोटा डेफिनेशन दिया है, इनेट जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी, कि सारे के आपके कॉग्निटिव जितनी भी एबिलिटी है उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं. विल गो थ्रू वन और टू. The ability to deal with a cognitive complexity, हमारे ब्रेन में जितने तरह के सोचने की शक्ति है उन सभी को मिलाई है तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को डील करने की जो शक्ति है उसको हम इंटेलिजेंस कहेंगे. गोल डायरेक्टेड अडेप्टिव बिहेवियर, हमारा जो गोल है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम उसका इस्तेमाल अपने ब्रेन का करें so that will be a kind of a intelligence. The unique propensity of the human beings to change or modify the structure of their cognitive functioning to adapt to the changing demands of the life and situation. So ये इंटेलिजेंस अलग अलग लोगों की अलग अलग वेरी करेगी. एक मेसन का इंटेलिजेंस ये है कि वो किस तरह से सारे स्ट्रक्चर को खड़ा करता है, किस तरह से मिक्सचर मिलाता है और उसको अप्लाई करता है. एक अच्छे प्लम्बर का ये स्किल होगा कि वो किस तरह से पाइपलाइन को ठीक ढंग से इरेक्ट करे, उसको फिर फिक्स करे. तो अलग अलग लोगों की इंटेलिजेंस अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से काम करेगी, लेकिन उनका ब्रेन बेस्ट फंक्शन करना चाहिए उस पर्टिकुलर वर्क के लिए. सभी चीजों को मिला के 10 बड़ी एबिलिटीज को इंटेलिजेंस के रूप में रखा गया है. सो इसमें पहला जो कैटेगरी है द फ्लूइड इंटेलिजेंस. ये फ्लूइड इंटेलिजेंस तब तक परिपक्व नहीं होगा जब वो प्रैक्टिस करके इस पे अपना पूरा डोमिनेंस बना नहीं लेता, जब तक वो पूरी तरह से सीख नहीं लेता. इसके बाद धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करेगा तो उसके क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में बदल जाएगा. कहने का मतलब वो अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पाएगा एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड. इफ ही लर्न्स, ही प्रैक्टिसेस, then that person will have a better intelligence, that is termed as a crystallized intelligence. Then quantitative reasoning, intelligence is always related to the mathematics. जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी, जिनकी रीजनिंग अच्छी होगी, उनका इंटेलिजेंस बेहतर होगा. रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी, आपकी रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए. आप पढ़ते हो और अच्छे ढंग से लिख पाते हो, ये भी एक इंटेलिजेंस का तरीका है. आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी तो हो, लॉन्ग टर्म भी मेमोरी आपकी अच्छी होनी चाहिए. शॉर्ट टर्म मेमोरी एज वेल एज लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड मेमोरी शुड बी बेटर एंड यू कैन रिट्रीव सर्टेन थिंग्स. आप उनको चीजों को अगर याद रखें तो काफी पुराने लोगों की जो मेमोरी थी वो जबरदस्त होती थी और साथ साथ इंटेलिजेंस भी होता था. जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इतने उनकी मेमोरी इतनी तेज होती थी, कौन से फाइल में क्या लिखा है उतना तक याद रखते थे. तो ऐसे कुछ लोग होते थे जो कि अब बहुत टॉप मेमोरी होती थी उनकी. जो भी चीजें एक बार कर गए फिर वो याद रखते थे कि कौन सा चीज कहाँ रखा हुआ है. सो दैट काइंड ऑफ अ मेमोरी certain person have. So long term storage and retrieval. विजुअल प्रोसेसिंग, आप आंख से देखकर
कितनी चीजों को प्रोसेस करके अपने मन में रख सकते हैं। देन ऑडिटरी प्रोसेसिंग, आप सुनते हैं उसमें से कितनी चीजों को अपने दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जब हम इतनी चीज़ें देख रहे हैं, इतनी चीज़ें सुन रहे हैं, सारी चीज़ें तो रहती नहीं है, कुछ रजिस्टर हो जाती है। देन प्रोसेसिंग स्पीड, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, कितने जल्दी आप रिएक्ट कर सकते हैं, कितने जल्दी आप एक्शन ले सकते हैं। तो एक पायलट है, एक आपका अच्छा ड्राइवर है, तो उसकी अगर प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी नहीं रहेगी तो वो सही समय पर एक्ट नहीं करेगा, तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस। सो ये भी एक तरह का इंटेलिजेंस है कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है। देन डिसीजन एंड रिएक्शन टाइम, ये भी एक। तो ये 10 तरह की एबिलिटीज को एक इंटेलिजेंस के 10 इंपॉर्टेंट लेवल पे इसको आप जज कर सकते हैं। ये सभी चीजें अगर जिनमें अच्छे हों, वो एक अच्छे इंटेलिजेंट व्यक्ति हो सकते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये ट्राई आर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया है। इनमें 3 पिलर्स हैं। पहला एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, दूसरे को क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं, और तीसरे को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इन्होंने 3 हिस्से में इंटेलिजेंस को डिवाइड किया। एनालिटिकल, जो हम चीज़ों को एनालाइज कर सकें, अच्छे ढंग से समझ पाएं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी हो टू एनालाइज द सिचुएशन इन अ बेटर वे। Creative, we are going beyond, we are going to add something to it so that we can improve the system. Creativity हमारी एक अलग तरह की सोच है, डिफरेंट सोच है, और उसमें हम बास्केट ऑफ चॉइस नहीं क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर थिंकिंग एंड आफ्टर इंटरनलाइजिंग एवरीथिंग। देन प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल जो चीज़ है कि अब हमने समझा, सोचा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होने वाला है वो भी हमारे दिमाग में उसका भी पिक्चर होना चाहिए। तो 3 तरह की इंटेलिजेंस है, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। सो एनालिटिकल मतलब आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, और वो एग्जैक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्रिएटिव, उसमें कुछ नई चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और प्रैक्टिकल जो है चीज़ें सेव करेगी वो किस तरह से करेगी। सो एनालिटिकल कहने का मतलब आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या प्रायर नॉलेज क्या है फॉर द सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। आप एक सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ले लिया आपने, आप फील्ड में जाएंगे तो आपकी एक नॉलेज मिल गई है कि भाई इस तरह से सर्वे करना है, इस तरह से एस्टिमेट करना है, इस तरह से बिल्डिंग के डिज़ाइन करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल गई। लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे तो उतने से ही काम नहीं चलेगा। आपको पता चला कि सॉइल स्ट्रक्चर बदल गया, बगल में एक नाला गुजर रहा है, आप अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी और डिज़ाइन में उस तरह के चेंजेस लाने पड़ेंगे। सो आपको एक नोवेल्टी लाना पड़ेगा in order to go for a practical problems. So novelty problems, unique situations, जो situations बदलने के बाद में आप उसमें भी काम कर सकें, सो आपकी क्रिएटिविटी है। तो आप उसको नए क्रिएट कर रहे हैं, नया एक चॉइस दे रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं। सो दैट नोवेल्टी इज इम्पॉर्टेंट। एक नयापन लाना है आपको अपने दिमाग से, ये जब आप काम करेंगे तभी होगा। Then automation apply learned material to the novel situation. Novel मतलब नया, anything new. And practically जब आप इसको करेंगे तो you can adapt. एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, धीरे धीरे आप सीखेंगे और नई चीजें आप खुद इजाद कर सकते हैं। Then shaping as per the change environment and selection. Select a new environment. तो प्रैक्टिकली जैसे जैसे आप काम को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी। आप 1 साल काम करेंगे, 2 साल काम करेंगे, मान लीजिए आप L&T कंपनी में काम किया कुछ दिन आपने, तो बहुत वहाँ पर जो भी काम सीखा, उस जो नॉलेज से आपकी क्रिएटिविटी फिर अगले जो प्रोजेक्ट कहीं किसी और कंपनी में जाएंगे, हो सकता है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और आप वहाँ पर बेहतर कर पाएँ। सो इंटेलिजेंस के ये 3 इम्पोर्टेंट theory है। Somebody has defined intelligence in this 6-7 dimensions. ये 7 8
So these are the 8 multiple intelligence theory. So what is that multiple skills? आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए? पहला linguistic skills, then spatial knowledge यानी ज्योग्राफी का आपको ज्ञान हो, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल स्किल्स आपके होने चाहिए. If you are better in music, then you can understand, you can adapt to a different situation. आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए. So musical intelligence is also very important. Then intrapersonal, कहने का मतलब आप अपने आप को कैसे डील कर पाते हैं, आपका सेल्फ स्टीम क्या है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसको कहते हैं हम इंट्रापर्सनल. हाउ आई एम डीलिंग विथ माई सेल्फ, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल. इंटरपर्सनल, हाउ वी आर डीलिंग विद द पीपल, how we can develop a team, how we can associate, how we can make friends, ये interpersonal relationship है. And then bodily kinesthetic, मतलब आपका हेल्थ, आपकी जो बॉडी है वो किस तरह से काम कर रही है, आपका अगर हेल्दी रहेंगे so you can perform better. So this is also a important theory to make yourself intelligent enough. तो इसका अगर सामंजस्य आपके मन में है तो आप अच्छा करेंगे. अब कोई जरूरी नहीं है कि सभी चीजें हमारे पास हों, लेकिन अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है. सो दे आर द 8 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी which says you, if you develop yourself in all the dimensions, all 8 dimensions, your intelligence level will be much better. But आप पूछोगे ज्योग्राफी के बारे में, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं. हिमाचल प्रदेश में वो एक जगह ही रहते हैं, आज तक दिल्ली भी नहीं देखा उन्होंने, आज तक दूसरे जगह गए नहीं किसी शहर में. आप उनसे पूछोगे कि भाई ये छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो उनको बिल्कुल पता नहीं है. नागपुर कहाँ है, तो बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफी को ठीक ढंग से समझा नहीं और मैप पर भी ज़्यादा ध्यान उनका नहीं गया. तो उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है. जब तक आप कहीं जाएंगे नहीं, सही घूमेंगे नहीं, तो आपको ज्योग्राफिकल ज्ञान कम होगा. तो इसलिए ये स्पेशल नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए भ्रमण करने से, जाने से, कहीं समझने से आपको बहुत सारी नॉलेज, इंफॉर्मेशन मिलती है. सो ये 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को आप लोग ध्यान रखिए. इसमें भी आप बच्चों को आप एजुकेट कर सकते हैं. तो ये पहला तो इंटेलिजेंस था. अब दूसरा हम मोटिवेशन की बात करें. मोटिवेशन क्या चीज़ होती है? सो मोटिवेशन विच इज कमिंग or prompting a person, compelling or energizing a person by itself. किसी किसी इंडिविजुअल में मोटिवेशन लेवल ज्यादा है, किसी में कम. सो ऐसी क्या बात है कि उसके मन में मोटिवेशन लेवल बेहतर है, और क्यों वो मोटिवेटेड है, क्यों लर्निंग के लिए आगे जाना चाहता है? क्योंकि वो एक अच्छा ट्रेंड प्रोफेशनल बनना चाहता है. जो भी सब्जेक्ट उसने लिया उसमें अच्छे ढंग से वो पढ़ाई करना चाहता है, उसको सीखना चाहता है. तो सबकी मोटिवेशन लेवल अलग अलग है. तो ये मोटिवेटेड कैसे रखा जाए? एंड मोटिवेशन में ऑल्सो फॉर्मली डिफाइंड एज ए इंटरनल स्टेट दैट अराउजेस, डायरेक्ट्स एंड मेंटेन्स बिहेवियर. कि वो मोटिवेशन लेवल बना रहे उस बच्चे का कि वो पढ़ाई करे और उसमें लगातार वो पढ़ाई में बना रहे. अगर वो मोटिवेटेड है और सेल्फ लर्निंग उसने सीख लिया है, सेल्फ डिवोशन ऑफ टाइमिंग सीख लिया है, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं. जब उसके पास ये सारा डिसिप्लिन अपना काम कर रहा है तो फिर वो आगे बढ़ेगा. और अगर डिसिप्लिन काम नहीं कर पा रहा है तो आप कितना भी उसको फोर्स करने की कोशिश करेंगे, उससे बात नहीं बनेगी. सो द इट्स अ सेल्फ काइंड ऑफ अ थिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द इनसाइड ऑफ अ पर्सन, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन. सो ये मोटिवेशन को समझने के लिए आप ये समझे कि मोटिवेशन डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल्स. उस गोल को आगे रखने के लिए आपके मोटिवेशन लेवल की जरूरत है. मोटिवेशन लीड्स टू इंक्रीज्ड एफर्ट एंड एनर्जी. अगर मोटिवेशन है तो ज्यादा एफर्ट करेगा, एनर्जी भी लगाएगा और मन से काम करेगा, लगन से काम करेगा. मोटिवेशन इंक्रीजेस द इनिशिएशन एंड परसिस्टेंस इन द एक्टिविटीज एंड मोटिवेशन अफेक्ट्स कॉग्निटिव प्रोसेस. तो उसके दिमाग में हमेशा अगर बात ये रजिस्टर्ड है कि हमें पढ़ना है और अच्छे ढंग से पढ़ना है और इस चीज को सीखना है, तो वो जरूर आपके सब्जेक्ट में मन लगाकर आएगा और सीखने की कोशिश करेगा. लेकिन अगर मोटिवेशन लेवल कमजोर है तो फिर आप उसको फोर्स नहीं कर सकते. सो ये मोटिवेशन में
क्या चीजें हैं जो कि एक व्यक्ति को मोटिवेटेड रखती। उसके कुछ एक्सटेंसिंग फैक्टर्स हैं कि भाई अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। कई बार उनको प्रलोभन भी दिया जाता है कि भाई अच्छा करोगे तो आपको कुछ हम नई नई चीज आपको दे सकते हैं। तो पेरेंट्स भी कई बार मोटिवेट करते हैं कि भाई आपने अगर अच्छा रिजल्ट दिखाया सो वी विल परचेज यू अ साइकिल और वी विल परचेज यू अ स्कूटी और समथिंग लाइक दैट। सो अवार्ड रिकॉग्निशन के लिए बच्चे पढ़ें, ऐसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के ऊपर बच्चे कई बार काम करते हैं। लेकिन अगर उस बच्चे के मन में ये बात घर कर गई है तो कोई जरूरत नहीं है एक्सटर्नल अवार्ड और ऐसी सारी रिकॉग्निशन की। उसके मन में आएगी भाई जो मुझे अच्छा मार्क्स मिले ना मिले, मैं इसको पूरे लगन से पढ़ूंगा और पढ़ूंगी और इसको पूरे इंटरनलाइज करने की कोशिश करेंगे। सो कई बार जो बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं और डीप जो समझ रखते हैं, कोई जरूरी नहीं उन्हीं को मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। मार्क्स तो उनको ज्यादा मिलता है जो उस क्वेश्चन के मुताबिक अपने आंसर लिखते हैं। मार्क्स उन्हीं को मिलता है जो क्वेश्चन के मुताबिक अपने आंसर लिखते हैं। कुछ बच्चों के पास नॉलेज भी होता है लेकिन वो सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते। सो ये दोनों फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक्सटेंसिंग जो कि उनको एक तरह से मोटिवेट करता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि हम लोग अवार्ड रिकॉग्निशन और पैसे के प्रलोभन से बात कर सकते हैं, लेकिन उसका जो इनर फैक्टर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। So it is a kind of extrinsic motivation is not bad। तो उसको मोटिवेट करने के लिए हम जो प्रलोभन दे रहे हैं और उस प्रलोभन में अगर वो अच्छा करता है कि भाई अगर तुम अच्छा करोगे तो मैं एक लैपटॉप दूंगा या लैपटॉप मिल सकता है तुम्हें, तो हो सकता है वो अच्छा करे। तो ऐसी कई बार प्रलोभन देकर भी हम उन बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उनका सेल्फ स्टडी का एक मोटिवेशन आ जाता है उससे बेहतर कुछ भी नहीं। अगर वो सेल्फ स्टडी करने लगे और डिपेंडेंट ना हो, अपना काम खुद करने लगे, पढ़ने और समझने लगे, तो फिर इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। वो ऐसा ही होता है कि जैसे नए साल में हम रेजोल्यूशन लेते हैं ना कि इस साल में हम ये काम करेंगे और 1 महीने के बाद फिर हम भूलने लगते हैं। तो बच्चे भी वैसा ही करते हैं। जब नए कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो उनके मन में पूरी मोटिवेशन होती है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है क्योंकि वो उस तरह से कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो वो उस मोटिवेशन लेवल को बनाए रखने के लिए बीच बीच में हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा ताकि उनका मोटिवेशन लेवल बना रहे और वो आगे बढ़ते रहे। फिर आप दोबारा विचार करिए कि भाई बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर आप दोबारा इंटरनलाइज करेंगे तो फिर बोलेंगे कि यार नहीं अब बहुत ज्यादा हो गया, फिर से सुबह हमें जाना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। अब आपके पास अब कई बार आपको टाइम नहीं मिलेगा तो आप शाम को जाएंगे, लेकिन आपको एक रूटीन तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर आपकी बॉडी ही ठीक नहीं रहेगी, आप खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप यही कंपेयर कीजिए कि जो लोग सुबह उठते हैं और जो लोग सुबह नहीं उठते हैं, उसके दो बड़े मतलब उसके फायदे और नुकसान है। जो लोग सुबह उठते हैं और पढ़ते हैं उनका एक अलग लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, अलग लेवल ऑफ थिंकिंग है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग तरह का है। और जो लोग लेट नाइट सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके में भी इंटेलिजेंस है लेकिन उनके एक अलग तरह का प्रक्रिया है। तो दोनों तरह के लोग हैं। अब इसमें से आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा बेहतर है। कि जब आप सुबह सारी चीजों को एक बार कर लेते हैं तो बहुत सारे काम आपके सुबह सुबह खत्म हो जाते हैं एंड देन यू आर फ्री फॉर मेनी ऑफ द थिंग्स। सो यू आर बेटर पर्सन इफ यू आर राइजिंग मतलब स्लीपिंग अर्ली एंड राइजिंग अर्ली। ये दिस इज द बेस्ट, मतलब आपको अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोटेशन है लाइफ के लिए। जो लोग व्यक्ति इस बात को फॉलो करते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं बनिस्बत की लेट सोने वाले। वो एक लेथार्जिक सिस्टम क्रिएट होता रहता है। सो हालांकि दोनों लोग जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मोटिवेशन लेवल जो एक अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाले का है उसका मोटिवेशन लेवल अलग है। वो सुबह नेचर को भी देख सकता है। आप तो सुबह सुबह आप जगते ही नहीं है तो नेचर तो आधा खत्म हो जाती है जब 2-3 घंटे। तो ऐसे लोगों का एक अलग जीवनचर्या है और दूसरे लोगों का अलग जीवनचर्या है। सो वी हैव टू बीच बीच में एनर्जी ये बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन आपको एज ए टीचर आपको ये करना है कि भाई जब जरूरत हो वैसे आप तैयार हो।
कि मान लीजिए आज लेक्चर लेना है, तो मैं सोचा कि भाई आज 5 बजे उठो, अच्छे ढंग से पढ़ो, फिर लेक्चर लो। तो जब भी आपके ऐसे क्लासेस होते होंगे तो आप भी इसी तरह से तैयारी करते होंगे कि भाई आज अच्छे ढंग से तैयारी की जाए और फिर इसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाए। तो अपने अपने लोगों का अपना अपना तरीका है। कई लोग रात में जब तक उसको खत्म नहीं करेंगे तब तक सोएंगे नहीं, ऐसे भी लोग हैं। उनको लगेगा कि भाई सुबह हो सकता है हम ना जग पाए, तो वो बड़ा मुश्किल में रहते हैं, तो वो फिर रात में पूरा करेंगे, फिर सोएंगे लेट और फिर सुबह उठेंगे। तो और कई बार उनको नींद ही नहीं आएगी कि भाई हम पढ़ रहे हैं तो फिर क्या होते। ऐसे मतलब सबकी अपनी अपनी कोपिंग मैनेजमेंट है, अपना अपना सिस्टम है। ये मोटिवेशन लेवल को हमें बीच बीच में रिवाइज करना है, इसको थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है। तीसरा जो फैक्टर है, मैच्योरेशन फॉर रेडीनेस टू लर्न। सबका एक एज है, एक बायोलॉजिकल एज है, उसी एज के हिसाब से हम सीखते, बढ़ते और लर्न करते हैं। जो चीजें जिस समय में हमें सिखानी है उसी समय में सीख पाएगा एक इंसान। क्योंकि आपने देखा होगा बचपन से लेकर एक बच्चा जो है 1 साल में चल पड़ता है, वो हेल्दी है, वो अच्छा स्वस्थ है। दूसरा बच्चा वो 2 साल में चल रहा है, तो वहां पर से एक लेवल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। मतलब कि बच्चा अगर स्वस्थ पैदा हो रहा है तो उसका इंटेलिजेंस उसी समय डिसाइड हो रहा है। बच्चे अपने माँ के गर्भ में से ही तैयार हो रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती जाती है, अगर वो हेल्दी बच्चा है, मेंटली भी अच्छा है, उसका इंटेलिजेंस लेवल तय हो चुका है शुरुआत में ही। तो इसीलिए हेल्दी मदर कैन प्रोड्यूस अ हेल्दी चाइल्ड। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा हमें सोचने की आवश्यकता है। और इस हिसाब से सबका एक बायोलॉजिकल एज निर्धारित है कि आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर टॉपिक एक पर्टिकुलर एज में अगर उनको पढ़ाएंगे तो सही समय पर उनको समझ आएगा। अगर उसके पहले भी आप तैयारी करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। क्या बच्चा जो अब 10+2 करके आया उसकी मैच्योरिटी लेवल है कि वो डिप्लोमा को समझ सके? और नहीं तो एक ब्रिज कोर्स हमें सोचना पड़ेगा कि ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स में सब फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने फिजिक्स सही ढंग से पढ़ा नहीं, मैथमेटिक्स भी उनकी कमजोर है। तो क्या कोई ब्रिज कोर्सेज चलाया जाए कि ताकि 10th और 12th का जो मैथमेटिक्स था या फिजिक्स था उसको रिवाइज किया जाए पहले, इसके बाद ही आगे बढ़ा जाए। तो ये एक बड़ी समस्या है कि सारे बच्चे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कमजोर हैं जो आपके डिप्लोमा सिस्टम में आ रहे हैं। तो जब फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ही कमजोर है तो डिप्लोमा इंजीनियर अच्छे कैसे बन सकते हैं? तो हमें उनको मेहनत करके इस विषय पर काम करना पड़ेगा ताकि वो एक मैच्योरिटी लेवल उनका बने और दे कैन इंटरलाइज द सब्जेक्ट of computer science, internalize the subject of mechanical engineering, internalize the subject of civil engineering। तो बेसिक फिजिक्स और मैथ्स जिनका कमजोर हो वो किसी तरह के इंजीनियर नहीं बन सकते, उनका तो कॉमन सेंस ही कमजोर है। तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे बच्चों को कि भाई आप इसमें कि आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स कमजोर है तो आप डिप्लोमा इंजीनियर नहीं बन सकते। आप उनको कहेंगे कि भाई अगर ये अच्छा करोगे तभी अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। अगर इसी को छोड़ दोगे तो आपकी जो फिलॉसफी, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप नहीं होगा और आप अच्छा एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, आप मशीन के फंक्शन को नहीं समझ पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको रिलेट करके बच्चों को बताना पड़ेगा और उनके लेवल को भी चेक करना है कि भाई ये मैच्योर है कि नहीं, हमारे काम के लायक है कि नहीं। और जो हमारे इमोशंस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So these are the feelings that color our lives and allow us to experience all the joys and the sorrows in the life. So joys and sorrows come in the life. सभी लोग कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, सभी लोगों को इस फेज से गुजरना है। So हमारे इमोशंस होने चाहिए, कभी खुशी के इमोशंस हो सकते हैं, कभी गम के इमोशंस हो सकते हैं, दोनों चीजें होती हैं। So if a person has no emotion in him, then he becomes crippled in terms of living his her life in a normal manner. अगर किसी में इमोशन से धीरे धीरे खत्म हो गए हैं तो वो अलग तरह की समस्या उनके पास खड़ी है। या तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, काफी दुखी हैं, या फिर वो किसी बात का मायने नहीं रखते कि भाई दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने काम में बिजी हैं। दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। अपने काम से काम मतलब रखो और दुनिया से कुछ मतलब ना रखो, ऐसे लोग भी हैं। इमोशंस उनके पास कम। कुछ लोग अच्छा भी कर सकते हैं, वो बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, उनके पास और कोई सोच नहीं है और उसी काम में लगे हुए हैं।
So but that is not good for the betterment of the life. So एक emotionless person हम नहीं चाहते, क्योंकि we are not going to become a robot, we want to become a human being. So emotion is an affective experience that accompanies generalized linear adjustment to the mental and physiological stirred up states in the individual, and that shows itself his or her overt behavior. So हमें इमोशंस का बैलेंस रखना है और उसमें फिर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है. ये इमोशंस का बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि हम सही ढंग से बिहेव कर पाएं, इमोशंस को कभी कंट्रोल भी कर पाएं, पेशेंस रखें. कोई ज़रूरत नहीं हमेशा हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही करें, कई बार हमें छुपाना भी पड़ता है पर्टिकुलर पीरियड में. देन इंटरेस्ट. व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट we can generate among the students. It is a deep-rooted constructs are determined by the need structure of an individual. वो जो डिप्लोमा इंजीनियर बनने के लिए वो लड़का आया है या लड़की आई है, उसके मन में एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई मुझे इस पूरे सब्जेक्ट को सही ढंग से समझना है. और अगर इंटरेस्ट हुआ तो आपका काम आसान है, अगर इंटरेस्ट नहीं हुआ तो आपका काम बहुत मुश्किल है. अब इस इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं. सभी लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग है. कोई लोग एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादा काम करते हैं, कोई बड़े सोशल हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, वो जाना चाहेंगे किसी क्लब्स में, एसोसिएशन में, पार्टी करेंगे, दे फील बेटर. सो अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं. अब इनको कंबाइन करके कैसे आपके एजुकेशन सिस्टम में उसको लाना है ताकि बच्चे थोड़े मोटिवेटेड रहें और इंटरेस्ट उनका क्रिएट किया रहे. तो कई बार आप सोच सकते हैं कि एनएसएस के कैंप में ले जाएंगे तो बच्चे आपके साथ जा सकते हैं. आप उनके साथ अगर जाएंगे और एनएसएस के कैंप में रहेंगे तो आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी और उसमें एक दूसरे के टीम वर्क के साथ में भी कई चीज़ें डेवलप होती हैं. सो व्हेन यू ऑर्गेनाइज एनी विजिट, फील्ड विजिट, इंडस्ट्रियल विजिट, और यू परफॉर्म सर्टेन थिंग्स, जो कई बार आपको कई तरह के काम भी करने पड़ते हैं. मान लीजिए कल्चरल फंक्शन आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो उन बच्चों की, कुछ बच्चे उसमें तेज होते हैं, उनमें एसोसिएशन के करने की भावना होती है, तो ऐसे बच्चों को रिकॉग्नाइज करके धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाया जा सकता है. सो हाउ इंटरेस्ट इज जनरेटेड. इट्स अ काइंड ऑफ अ इनर नीड which goes for the interest, and it is important for learning, generation of interest for appropriate learning, and then reinforcement in terms of the satisfaction of the need. तो अगर इंटरेस्ट लिया, उसने पढ़ाई की, उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छा काम कर सकेगा, प्रैक्टिकली वो चीज़ों को कर पाएगा. तो ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जो भी आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो इंटरेस्ट लेगा तो सीख पाएगा, इंटरेस्ट लेगा तो प्रैक्टिकल भी कर पाएगा, और इंटरेस्ट अगर नहीं लेगा तो ये दोनों चीज़ों में कमजोर रहेगा. सो हाउ टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट, एंड फॉर दैट समटाइम वी हैव टू वर्क इनडायरेक्टली. कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ाई कराना है, ज़रूरत है तो आप फुटबॉल खेलने के लिए बच्चों को ले जाइए या वॉलीबॉल खेलने के लिए बच्चों को ले जाइए. थोड़ी देर खेलेंगे, इसके बाद उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा और हो सकता है आपके सब्जेक्ट में भी अच्छा करें. तो इसीलिए हमें कई बार इनडायरेक्टली लोगों को सोशलाइज करना पड़ेगा, टीम वर्क बनाना पड़ेगा. कई बार आप पीयर ग्रुप में भी कोई प्रोजेक्ट देंगे तो एक इंटेलिजेंट बच्चा एक एवरेज बच्चे के साथ रहेगा तो दोनों एक दूसरे से सीखते हैं. तो इस तरह के प्रोजेक्ट में आप उनको डिवाइड करिए कि ग्रुप बनाइए, एक इंटेलिजेंट, कुछ एवरेज और कुछ पुअर बच्चे उस ग्रुप में हों और मिलके काम करें. तो आप देखेंगे कि वो जो पुअर बच्चा है वो प्रैक्टिकली कई चीज़ों को असेंबल करने में ज़्यादा तेज है, क्योंकि उसने गांव में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल काम कर रखे हैं. मान लीजिए वो कारपेंटर या फिर इस तरह से ब्लैक स्मिथ का काम पहले से ही जानता है, वो इनहेरिटेड उसका काम है घर पे, तो उसमें बहुत अच्छी सारी फिटिंग कर सकता है, बहुत सारी नई मॉडल बना सकता है. सो देयर आर सम इनहेरिटेड क्वालिटीज अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, and the only thing is we have to recognize and appreciate. हमें recognize and appreciation करना है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सीधा पहले पढ़ाई पे आएंगे. हो सकता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और दूसरे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप उनको मोटिवेट करेंगे कि भाई तुम खेलने में तो बड़े अच्छे हो, कि थोड़ा पढ़ाई में अगर ध्यान लगाओगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो.
पढ़ाई में अगर ध्यान लगाओ तो बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड वो दिन रात खाली क्रिकेट खेलता था, सुबह से शाम तक उसका काम खाली ये था कि क्रिकेट खेलता था। लेकिन 10th में आने के बाद में उसके मन में एक भावना है कि यार क्रिकेट खेलते खेलते मैं क्या बन सकता हूँ, कुछ अगर मुझे कोई चीज नहीं मिली, मैं एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बना, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट नहीं हुआ, रणजी में नहीं गया, फिर मैं करूंगा क्या। तो ऑल ऑफ ए सडन 10+1 के बाद में उसके मन में एक जागृति आई कि अब पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, बहुत हो गया खेल। अब वो पूरा कंसंट्रेशन खेल में भी देने लगा और 2 घंटे वो क्रिकेट खेलता था। तो +2 करते करते, बीए करते करते वो बैंक में सिलेक्ट हो गया। उसने इतनी पढ़ाई की, कम से कम बैंक के कंपटीशन में आ गया एंड ही बिकेम मतलब क्लर्क बन गया। अदरवाइज वो क्रिकेट खेलता तो हो सकता था कि वो आगे क्रिकेटर बन सकता था, लेकिन कोई उसमें गारंटी नहीं है कि आपको एक जॉब मिलेगी। तो नाउ ही इज लीडिंग अ गुड लाइफ एंड ही ग्रू इन द सिस्टम। सो आपके मन में एक पर्टिकुलर अगर क्वालिटीज होती है तो उसको कन्वर्ट करने में, उस एनर्जी को, कई बार वक्त तो लगेगा, लेकिन अगर सही ढंग में वो कन्वर्ट हो गया तो आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि देयर मे बी अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ। हर एक के मन में, हर एक के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां से वो बदलता है। Then the attitudes, they are the most important thing, positive और negative, likes और dislikes, ये बच्चों में आज तक पहले से ही डेवलप हो रहा है। आप उनको बोलेंगे करेला खाओ तो बोलेंगे कि ना, आप उनको ये कहेंगे हरी सब्जी खाओ तो बोलेंगे ना, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आता है जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं कि भाई इसका महत्व क्या है, हमें क्यों बोला जाता था कि ये क्यों खाना चाहिए। सो likes and dislikes develops early in the life, and it also depends on the parents many a time, but we have to develop our child so that they have a better attitude towards all the things. So उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे पढ़ाया जाए ताकि वो आगे बढ़े। So attitudes are born out of the process of socialization and usually have a knowledge and feelings components. So आप फैमिली से ये सारी चीजें जनरेट हो रही हैं। एक अच्छी फैमिली कोशिश करती है अपने बच्चे को सारे नॉलेज देने की। सो पॉजिटिव जितनी एटीट्यूड्स है वो काफी हद तक फैमिली और सोसाइटीज में डेवलप होती है। फॉर इंस्टेंस इफ वी आर इंक्लाइन टुवर्ड्स रीडिंग बुक्स, किसी को बुक पढ़ना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को फिटनेस रखना पसंद है, देन वी विल हैव टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स बुक्स, गेम्स, going for the morning walks and gymnasium. So अपना अपना सबका thinking है, लेकिन we have to have positive attitudes towards our keeping ourselves better. तो इसके लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं और बच्चों में क्या कुछ हम दे सकते हैं, ये बड़ा important है। So as a teacher you have to keep them self motivated and their attitude should be positive. उनको पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप ये देखिए। सबसे बड़ी बात है सेल्फ कॉन्सेप्ट। पूरे हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों की सेल्फ एस्टीम कम होती है। आपने देखा होगा कि हमारी टीम एंड वक्त पे हार जाती है, लास्ट ओवर में कुछ रन बनाने होते हैं लेकिन वो चोक कर जाते हैं। साउथ अफ्रीका आज तक फाइनल में हारती रही, वो चोक कर जाते हैं। सो सेल्फ एस्टीम जो है वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बताता है। और जब आप चंडीगढ़ आए, कल आपको यहाँ पर मैंने बुलाया, तो आपके मन में, कुछ लोगों के मन में ये भी रहा होगा कि यार यहाँ बुलाया जा रहा है, क्या बोला जाए, है ना। आपके मन में एक, कभी कभी स्टेज पर आपने परफॉर्म किया होगा, आप में से कई लोगों ने, तो एक स्टेज फियर होता है। सो यू हैव टू पास थ्रू दैट फेज एंड ग्रेजुअली यू हैव टू मेक योर सेल्फ इमेज। एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, तीसरी बार तो अच्छा करेंगे। इसलिए पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। इसलिए बच्चों को हमेशा ये कोशिश की जाती है कि आप पार्टिसिपेट करिए, आप बोलिए। अगर वो बोलने लगेगा तो आज सीखेगा, एक मान लीजिए थोड़ा सीखा, कल दूसरे सीखेगा, धीरे धीरे सीखेगा। मोटिवेट करिए कि बैक बेंचर्स भी कुछ सवाल कर पाए, मोटिवेट करिए कि वो भी कुछ डिबेट में शामिल हो सकें। वो एक ही प्रश्न का एक ही टुकड़ा जवाब देते हैं तो उनको अप्रिशिएट करिए। तो इस तरीके से
उनके सेल्फ मोटिवेशन को, स्टीम को बढ़ाइए कि भाई आप एक, अब जैसे हम लोगों को बोला जाता था कि आप कॉलेज में आ गए, आप बच्चे नहीं रहे, आपको अब अलग तरह से थिंकिंग करनी चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ गई है। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उनको हम उनका इमेज अलग क्रिएट करें कि भाई नाउ यू आर गोइंग टू बी अ डिप्लोमा इंजीनियर एंड इफ यू इंडस्ट्री गो टू एनी इंडस्ट्री यू विल बिकम अ सुपरवाइजर। तो तुम अगर खुद ही अगर अच्छे नहीं रहोगे, समझ नहीं पाओगे, सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं रह पाएगा, तो तुम दूसरे लोगों को क्या गाइड करोगे? So if you are going to be a supervisor of a floor, then you have to have such kind of a knowledge. So उसका सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम बेहतर होना चाहिए और उसके सेल्फ एफिकेसी भी अच्छी होनी चाहिए। ये तीन चीजों से मिलकर ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। सेल्फ इमेज रेफर्स टू वंस ओन परसेप्शंस अबाउट वनसेल्फ। हमारा जो नजरिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वंस स्ट्रेंथ्स एंड कैपेबिलिटीज एंड व्हाट आर द वंस वीकनेसेस एंड लिमिटेशंस। उसको अपनी स्ट्रेंथ और कैपेसिटीज का भी पता हो और अपनी वीकनेसेस का भी पता हो। दैट इज कॉल्ड सेल्फ इमेज, कि हम कहाँ अच्छे हैं, कहाँ अच्छे नहीं हैं और कहाँ हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका जो सेल्फ इमेज है इट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ आवर लर्निंग। अगर आप इसको ऊपर रखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे ढंग से समझेंगे और क्लोज आगे बढ़ेंगे। So very closely related to the concept of self-image is the self-esteem. आप अपने आप को कहाँ रख रहे हैं इसमें, सेल्फ स्टीम में आप इसको अपने आप को कहाँ पाते हैं? सेल्फ स्टीम refers to the value a person places on himself or herself. तो आमतौर पर हिंदुस्तान के लोगों की सेल्फ स्टीम कमजोर है, गांव के लोगों की थोड़ी और कमजोर है। उनको लगता है कि यार मेरी वैल्यू क्या है, लेकिन आपकी वैल्यू है, आप अपने वैल्यू को बढ़ाइए। It is the ideas one has about his her attributes and abilities. उनको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, so confidence level उनका कमजोर है। So these ideas are not only based on the personal experience and self-analysis, but are located within the domain of how one perceives one's acceptance and recognition by others. So आपका अपना self esteem धीरे धीरे बढ़ाना है, अपने आप को क्रिएट करना, अपने आप को स्थापित करना है। नए वर्ल्ड में ज्यादा स्थापित करने की जरूरत पड़ेगी और पुरानी जगह पर तो आपकी पहचान बनी हुई है। सो यू हैव टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। एंड व्हाट इज द सेल्फ एफिकेसी? सेल्फ एफिकेसी रेफर्स टू द पर्सनल बिलीफ इन हिज और हर एबिलिटी टू गेट द थिंग्स डन। आपकी पर्सनल एफिकेसी ये है कि आप ये जानते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई कैन डू इट, आई कैन फिक्स इट। So if you take a challenge, then you can do it. अगर पहले ही हट जाएंगे तो you can't do it. कई बार आप छोटा ही काम ले लीजिए, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट खराब हो गया है, कई लोग तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, कई लोग सोचते हैं कि देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ है। तो छोटी मोटी कमी रहती है तो आप खुद ही ठीक कर सकते हो और उसी के लिए आपको काफ़ी परेशान होना पड़ता है। So some of the things we can correct ourselves. So हमारे पास एक सोच होनी चाहिए कुछ करने के लिए और हम इस काम को कर पाएंगे, इसके लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। So what is a learning style? सुबह अभी जब डिस्कस कर रहे थे, all the persons have the different styles of learning. Some they go deep in the study, some they just go through it, makes the note, and they prepare themselves for the exams. And what is the timing? Some are getting up early, some are studying late night, someone will like to study under the tree, someone will go in the aloof and in any park or any other place with the nature, they would like to study there. That is a better thing. So अपने अपने हिसाब से सभी लोगों का पढ़ने का तरीका, सीखने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। So another important learning style on which the individuals differ is the impulsivity versus reflectivity. किसी के अंदर impulse बहुत ज़्यादा है, वो जल्दी सीखेगा। किसी के अंदर थोड़ा response कमजोर है, वो ज़्यादा देर से सीखेगा। So impulsive individuals tend to work and make decisions quickly. वो जल्दी डिसीजन लेगा, जल्दी काम करेगा और जल्दी अपने वर्क पूरा करेगा। तो जल्दी अपने वर्क पूरा करेगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो अपना ये पहले स्टडी करते हैं, फिर जाके खेलने जाते हैं। तो कई बच्चे खेलने में भी अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं।
तो वो मल्टी टैलेंटेड इसीलिए बन जाते हैं कि वो अपने आप पहले काम को पूरा करते हैं, फिर दूसरे काम पर अपना ध्यान देते हैं, और उस समय इस बात को बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि उधर क्या पड़ा है. एट दैट टाइम दे आर इंगेज्ड इन playing and they relax themselves. So this is the best way. So इसलिए रिफ्लेक्टिविटी आपकी अगर बढ़ानी है तो बच्चों को सिखाइए कि भाई टाइम मैनेजमेंट सीखो, अपना काम करो, पहले अपने काम कर लो, फिर दूसरे काम करते रहो. और जरूरत पड़ने तो अपने बच्चों के लिए आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनका ज्यादातर समय इसी में जा रहा है. हम और आप 2-3 घंटे इस गजेट के ऊपर दे रहे हैं और बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं. हमारा कब समय निकल जाता है हम देखते नहीं. और इसके अलावा हमारे पास हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है, किसी को सर्वाइकल हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है. इट इज ऑल ड्यू टू दिस एंड दिस लैपटॉप. तो हम अपने घर इससे बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, बच्चे भी खेल नहीं रहे हैं बाहर. तो आप अपार्टमेंट में रहते हैं, बड़े सिटी में रहते हैं, तो बच्चों के खेलने का क्या तरीका है, वो गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम. सो हाउ टू डिसएंगेज आवरसेल्व्स थ्रू दिस गजेट. इससे दूर कैसे रहा जाए थोड़ी देर, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे. सो कैन वी कीप आवरसेल्फ अलूफ, अदरवाइज इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो बच्चों में भी ये आदत डालो कि भाई इसको छोड़ो, तुम यहाँ से बाहर जाओ, या बेशक तुम पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, बाहर जाके खेलो, चाहे जो भी करना है कुछ करो. तो उस समय ये रहेगा कि कम से कम वो बाहर घूम के तो आएगा, अदरवाइज तो वो घर में पढ़ा है और उसकी लर्निंग पूरी नहीं हो पाएगी. आप समझ रहे हैं कि वो लैपटॉप पे पढ़ रहा है, वो पढ़ का क्या पढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें उसमें इंगेज हो जाता है. सो ऑल द टाइम वॉचिंग सच थिंग्स. सो लर्निंग स्टाइल हमें कुछ ट्रेडिशनल रखनी पड़ेगी, कुछ मॉडर्न रखनी पड़ेगी, दोनों मिलाकर लर्निंग स्टाइल बच्चों को देना पड़ेगा, ताकि भाई वो पढ़े भी और अपने आप को स्वस्थ भी रखें. अगर स्वस्थ नहीं रखेंगे तो पढ़ाई भी कमजोर होगी, अगर वो बीमार पड़ेंगे तो पीछे जाएंगे. सो उनका स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई. इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पास फैमिली से आ रहा है. सो पेरेंट्स आर द फर्स्ट, कहते हैं ना कि एजुकेशन बिगिंस एंड होम. सो पेरेंट्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. कई बार आप एज अ टीचर आपको लगता है कि भाई पेरेंट्स कराते क्या हैं. अब वो गांव के बच्चे हैं, पेरेंट्स को बिल्कुल चिंता नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया हुआ है, पेरेंट्स तो कुछ भी नहीं कर रहे. लेकिन जो जागरूक पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, वो बच्चे अच्छा करते हैं. और कुछ बच्चे हो सकता है कि वो गरीब पेरेंट्स के भी अच्छा करते हैं, उनके बचते कि सेल्फ मोटिवेशन, वो भी अच्छा कर सकते हैं if they are self motivated. So the family background plays a very important role in the educational behavior of the person. Neighborhood और community भी अगर अच्छी हो, अच्छे वातावरण में पल बढ़ रहे हो तो अच्छा करेंगे. उनके कास्ट फीचर्स, क्योंकि we are all bound to this our Indian system. We are coming from one particular caste, we are coming from one social background. So certain features are already there, certain characteristics are already there. तो सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग होते थे, यूरोपियंस के लिए एक ट्राइब्स होते थे. उन्होंने सभी कास्ट के ऊपर तरह तरह की स्टडीज की कि भाई इनका बिहेवियर ऐसा है, कुछ ऐसा बिहेवियर है. उस समय अब 200 साल पहले कुछ लोगों को स्टडी किया तो कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जिसको नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब्स उन्होंने 200 साल पहले बना दिया. अब वो नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब्स तो 200 साल पहले थे भाई. अब वो पढ़ लिख के अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो स्टैंप लगा हुआ है. तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको उसी दिमाग से देखता है. अब कोई बच्चा उसमें अच्छा भी हो सकता है, पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, लेकिन ये सारी स्टिग्मा हमारे साथ सोसाइटी में लगी हुई है. सो क्लास अगर वो इकोनॉमिकली रिच है तो वो पढ़ाई में कम ध्यान देगा और सूट बूट में ज्यादा ध्यान देगा, मोटरसाइकिल पे आएगा, पढ़ाई से उसको ज्यादा मतलब नहीं है. सो क्लास कुछ हद तक आपके बिहेवियर को डील करता है. अगर आप अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, अच्छे आपके परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो आप एक अच्छे तरह से बिहेव करेंगे. रिलीजन भी ऑल्सो एक फैक्टर. देयर आर सर्टेन प्रेफरेंसेस इन द रिलीजन. कुछ रिलीजन में कुछ चीज़ों के प्रेफरेंस है, उसमें वो अच्छे होंगे, बाकी में कमज़ोर भी हो सकते हैं. एथनिसिटी, सो देयर इज एथनिक डिफरेंस ऑल्सो. एक पंजाबी स्पीकिंग ग्रुप है, दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर बेटर एग्रीकल्चर, दे आर एंटरप्राइजिंग.
गुजराती हैं वो सारे सब बिजनेस माइंडेड हैं, मारवाड़ी हैं वो सबसे अच्छे बिजनेस माइंडेड हैं, बिहार और यूपी के लोग उनका ज़्यादा सोच ज़्यादा नहीं है, किसी तरह से एक नौकरी मिल जाए, कहीं काम मिल जाए, उनकी सोच उसी में लगी हुई है. सो योर एथनिसिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, योर कल्चरल बैकग्राउंड इज इम्पॉर्टेंट, एंड इट ऑल्सो डिफर्स विद अ जेंडर, क्योंकि बच्चों में डिफरेंसेस पहले से हमारे समाज में बने हुआ है, जेंडर डिफरेंस है, और अभी भी लड़कियों को प्राथमिकता कभी काफ़ी जगहों पर नहीं दी जाती है, जिसके कारण से वो संकुचित, वो ओपन विचारधारा के बन नहीं पाते हैं और समाज में ऊपर नहीं आ पाते. सो जेंडर डिफरेंस इज ऑल्सो देयर. देन द पीयर ग्रुप, हम और आप अपने बच्चों से बार बार ताल्लुकात इसीलिए रखना चाहते हैं कि वो किस तरह के लोगों के उसके साथ दोस्ती है, क्या उसकी फ्रेंडशिप है, उसका पीयर ग्रुप क्या है. अगर पीयर ग्रुप अच्छा होगा तो बच्चा अच्छा करेगा, अगर पीयर ग्रुप अच्छा नहीं होगा तो हो सकता ना करे. तो इसलिए वी आर वेरी वेरी केयरफुल कि व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन सी इज एसोसिएटेड और सी इज एसोसिएटेड विद, वेदर दैट पर्सन इज हैविंग अ गुड बिहेवियर और नॉट. सो the all socio-cultural factors are very very important, and most important is the thing that what kind of a culture that institute or that polytechnic has overall. वहाँ के प्रिंसिपल कैसे हैं, वहाँ के टीचर्स मिलजुल कर कैसे बिहेव करते हैं, व्हाट इज द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ द whole people there. So how the teachers and the students they come together, they keep the discipline, and they make a institute culture. So whenever you come to this institute, then you find that all the people are busy here. You find a better surrounding, green हरा भरा कैंपस है, यहाँ पर सारी चीजें व्यवस्थित हैं, आपको बहुत सारी चीजें डिफरेंस नजर आता होगा, और आप ये चाहेंगे कि इस तरह का संस्थान सभी जगह बने. So this is all culture which has been created in this institute by so many people. Right from our first principal, उन्होंने AMI के डिप्लोमा कोर्सेस एक ही साल में 2 सब्जेक्ट में कर लिया है, एक शायद इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल, तो या सिविल. इतने मतलब इंटेलिजेंस उस समय, डिप्लोमा करके फिर AMI किया उन्होंने. AMI करने के बाद में वो टीचर बने पॉलिटेक्निक में, और पॉलिटेक्निक के टीचर बनने के बाद में बगल में सेंट्रल पॉलिटेक्निक है, CCT जिसका नाम है, CCT आजकल इसका पूरा नाम हो गया चंडीगढ़ इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी. सो earlier it was a central polytechnic. So our principal, that founder principal, he was a principal at that polytechnic. So in 1967, when this Government of India decided, Ministry of Education decided to open 4 NITTTR, Technical Teachers Training Institute. So that principal was selected as a principal of this institute. So he is the founder principal. उनका नाम था TK वैद्यनाथन साहब. तो उन्होंने इस संस्था को बनाया. सो उन्होंने एक वर्क कल्चर डिसाइड किया, और नीदरलैंड गवर्नमेंट के साथ ये संस्थान बनाया गया. नीदरलैंड के एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए, उन्होंने सभी लोगों को ट्रेन किया कि भाई ये संस्था चलेगी कैसे, किस तरह से लोगों को गाइड किया जाए, और जो पॉलिटेक्निक के टीचर्स हैं उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे दिया जाए. 2 तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज, एक एजुकेशन से रिलेटेड पेडागोजी, और दूसरा उनके डोमेन नॉलेज, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल. यही 3 डिपार्टमेंट पहले ओपन हुए, बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ओपन हुआ, और एक डिपार्टमेंट एजुकेशन का बनाया गया. So they are the 5-6 important departments of this institute, which has created a better work culture, and all the teachers and faculty members and even staff, you'll find that they are working on their seat. कभी इधर उधर घूमते कम नजर आएंगे आपको, सब अपने काम पे लगे हुए हैं. जरूरत पड़ने से वो चाय पीने जरूर जाते हैं, लेकिन अपने काम पे दुरुस्त है. सो प्रिंसिपल के लीडरशिप पे भी आपके पॉलिटेक्निक का दारोमदार निर्भर करता है. और प्रिंसिपल साहब आ गए हैं और फिर लगे हुए हैं कि किसी तरह से यहाँ से ट्रांसफर हो जाए. ललितपुर में आ गए वो, है ना. ललितपुर इज अ रिमोट प्लेस इन झांसी से दूर. इसी तरह से कोई कौसाम्बी में चला गया. आप बहुत सारे रूरल जगहों पर चले गए होंगे, आप लोग में कई जगह पर हैं, तमाम जगह पर पॉलिटेक्निक खुल गए हैं, है ना. वहाँ पर अभी पूरी सुविधाएं भी नहीं है, आपको वहाँ भेज दिया गया है.
जैसे वो डॉक्टर्स होते थे ना, रूरल एरिया में डिस्पेंसरी में पोस्ट कर दिया जाता है, वो कभी भी वहां जाते नहीं। तो उसी तरह से, लेकिन आपकी मजबूरी है कि एज ए टीचर आपको जाना पड़ता है, एंड यू आर पोस्टेड देयर, बट यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। तो जो प्रिंसिपल मान लो वो चला गया वहां पर, अब उसका वहां मन नहीं लग रहा है, तो वो संस्थान को कम अपना ये ध्यान रख रहा है कि भाई किस तरह से जैसे ट्रांसफर हो जाए। तो जब वो संस्थान में ध्यान ही नहीं दे रहा तो संस्थान का क्या हाल होगा? ना उसका फिजिकल इन्वायरमेंट चेंज होगा, ना उनके एजुकेशनल इन्वायरमेंट चेंज होगा, तो बच्चे वहां पढ़ाई की दूर की बात है। तो अब आप लोग जब चले ही गए हैं, तो जब तक आप हैं तब तक एक वर्क कल्चर डेवलप करने की कोशिश करिए, सराउंडिंग भी बढ़ाने की कोशिश करिए, कुछ ग्रीनरी लगाने की कोशिश करिए, वहाँ आपके एरिया को डेकोरेट करिए। सो फिजिकल और इनसाइड क्लास जो भी आप कर सकते हैं आप करिए। सो जिसमें सारी चीज़ों में पैसे नहीं लगता है, कुछ चीज़ें हम खुद ही कर सकते हैं। सो इंस्टीट्यूट कल्चर्स हाउ इट कैन बी डेवलप्ड, इट कैन बी डेवलप्ड फिजिकल स्ट्रक्चर में बदलाव लाया जाए, डेकोरेट किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, ग्रीनरी लगाई जाए, आर्टिफैक्ट्स एंड सिंबल्स, जगह जगह कुछ थोड़े से स्कल्पचर्स लगा दिए जाएं, मॉन्यूमेंट्स लगा दिए जाएं, पेंटिंग लगा दी जाए। तो आप इस पूरे कैंपस में घूमेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, सभी जगह कुछ ना कुछ डेवलप किया गया है, कहीं लैंडस्केपिंग की गई है। सो फिजिकल स्ट्रक्चर में बदलाव, वैल्यूज, लोगों के वैल्यूज अच्छे हों, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल है या फिर नीचे तक सभी लोगों के वैल्यूज हैं कि भाई अपने काम के प्रति जिम्मेवारी लेकर काम करिए और अपने काम को लगन से करिए। और एजम्पशंस जो होने चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। द बिलीव्स दैट आर टेकन फॉर द ग्रांटेड अबाउट द ह्यूमन नेचर। सो हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेके हम एजम्पशंस पॉजिटिव रखें और अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें। सो इंस्टीट्यूट का एक कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर स्टूडेंट आ रहा है, अगर अच्छा वर्क कल्चर पहले से ही है तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा समझेगा, और वहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए वर्कशॉप भी अच्छे हैं तो वो प्रैक्टिकली भी अपने आप को सीख पाएगा। तो इस तरह से इंस्टीट्यूट का कल्चर, वर्क कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक स्टूडेंट्स को सजाने, संवारने और आगे बढ़ाने में। सो अपीयरेंस, फिजिकल स्ट्रक्चर, फैकल्टी रिलेशनशिप, बाकी तो सब है लेकिन आपस में किसी की बनती नहीं है। तो फैकल्टी में अगर आपस में उलझ जाए तो फिर बात खराब हो जाती है, तो फिर वहाँ पर अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं रहता। स्टूडेंट्स इंटरेक्शन बेहतर हो, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग एंड डिसिप्लिन, लर्निंग इन्वायरमेंट, एटीट्यूड एंड कल्चर, इंस्टीट्यूट कम्युनिटी रिलेशनशिप। कई बार आपको बगल के कम्युनिटी के साथ भी कुछ ना कुछ संवाद रखना चाहिए, वहाँ के सरपंच हो, वहाँ के गांव के लोग हों, क्योंकि आपका पॉलिटेक्निक गांव के बगल में बना हुआ है। सो यू हैव टू हैव बेटर कोऑर्डिनेशन विद देम, अदरवाइज होगा ये कि कुछ लोग आपके खिड़की दरवाजे सब वहाँ से तोड़ के ले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, या चोरी हो जाएगी। अगर उनके संपर्क में रहेंगे तो वो लोग विजिलेंट रहते हैं और आप लोगों को मदद करेंगे बहुत सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए। और अगर आप उनके संपर्क में नहीं रहेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो, फायदा तो होगा नहीं लेकिन नुकसान हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, मेथड्स ऑफ लर्निंग, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किस तरह से अपने नोट्स, आप में से कोई कह रहा था कि भाई वो हिंदी में तो है ही नहीं केमिकल इंजीनियरिंग, तो आप क्या करिए कि धीरे धीरे अपने नोट्स तैयार करिए और वही नोट्स बाद में बच्चों को दे दीजिए। आप कोशिश करेंगे एक बार तो एक बार तैयार हो जाएगा तो आपके लिए अगले 10 साल के लिए रहेगा। तो हर एक चैप्टर का एक जिस्ट लिखिए हिंदी में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंग्रेजी में लिख दीजिए और उससे उनकी नॉलेज दुरुस्त हो सकती है। सो जनरल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल एंड रिवीजन, ये हर एक बच्चों को अगर सही ढंग से करा दिया जाए तो अपना पेपर तो तैयार होगा, मतलब उस पर्टिकुलर पेपर के लिए वो लोग तैयार होंगे। जरूरत पड़े तो इंडस्ट्रियल विजिट करिए, कई बार आपके पास कुछ साधन नहीं होता है तो इंडस्ट्रियल विजिट हो सकता है, आप सारे बच्चों को बोल कर भी कर सकते हैं किसी तरीके से कि भाई आप लोग कंट्रीब्यूट करिए, 100 रुपए एक गाड़ी लेते हैं और चले जाते हैं फील्ड विजिट्स के लिए। बीच बीच में क्विज एंड सेमिनार एंड प्रोजेक्ट वर्क देने की कोशिश करिए ताकि बच्चे आपस में मिलजुल कर सीखेंगे, समझेंगे और कई चीज़ें वो प्रोजेक्ट के साथ सीख जाते हैं। सो यू ट्राई टू गिव देम सम प्रोजेक्ट।
सो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आपको और भी लोग बताएंगे, वो भी ज़रूरी है टीचिंग लर्निंग के लिए। सो मैंने आपको ये बताया कि भाई छोटे नोट्स बनाओ हिंदी में, एक पेज मान लीजिए पूरा एक चैप्टर है तो 2 ही पेज लिख के आप उसको दे दीजिए और वो धीरे धीरे आपका नोट्स जो है, या किसी अच्छे लड़के को शामिल कर लीजिए, उसको बोलिए, उससे लिख देगा। सो नोट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले हम लोग साइक्लो स्टाइल सारा देते थे, पहले हाथ से ही लिखा करते थे, है ना। पहले ये सारे सिस्टम नहीं थे तो पर हाथ से लिखा करते थे, टाइपिंग भी उतना नहीं था, तो हाथ से लिखकर हमारे पास वो सीट आती थी जिस पे बनाकर फिर वो प्रिंट होता था। तो ये नोट्स आप दोबारा एक बार ट्राई करिए कि हिंदी में क्या बनाया जा सकता है, और आजकल कंप्यूटर में हिंदी लिखने का तरीका बहुत आसान है, आप ट्राई करिए। आप में से कोई अगर हिंदी नहीं लिखना जानते हैं तो इजी हिंदी टाइपिंग एक आ रहा है, उसमें जाएंगे आप, टाइप करिए अंग्रेजी में, सारे हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। सो यू कैन टाइप योरसेल्फ। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि टाइपिस्ट की ज़रूरत है आज की तारीख में, आप खुद भी हिंदी में टाइप कर सकते हैं और वो नोट तैयार करिए, उसमें मेन पॉइंट्स लिखकर बच्चों को दे दीजिए, और हो सकता है आने वाले दिनों में आप अपनी पीपीटी हिंदी में भी बना सकते हैं। तो ये सारे तरीके अपनाकर आप उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो मीडियम से, मल्टीमीडिया तरीके से, या फिर वर्चुअल लैब का भी ज़माना है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्चुअल लैब में जैसे ड्राइविंग सीखना है तो सबसे पहले आप 5 दिन लगाइए कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो एक आपको वर्चुअल लैब के सिचुएशन में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। Now we'll come to the last portion of this lecture. What should be the good qualities among the teachers? Number 1, gradually he or she has to be a good communicator. आप अगर हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी सही बोलें, अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अंग्रेजी भी सही बोलें। तो दोनों ही चीज़ें हमें सीखनी है, क्योंकि they are the two important language through which we are communicating with our students. So sometime our local language, like in Punjab, it will be Punjabi, like in Telangana, it will be Telugu or some other language. So local language plus English, you have to be proficient in that and you have to communicate well. लिखने में, प्रेजेंटेशन में और बोलने में, सभी तरीके से आप अगर अच्छे कम्युनिकेट कर रहे हैं, so you are a good communicator. Then you have to be a good listener also. खाली वन वे कम्युनिकेशन करेंगे तो अच्छी बात नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स में कोई टीचर उतने अच्छे नहीं होते हैं, कुछ एक बच्चे बहुत तेज होते हैं, बहुत सारा प्रश्न पूछते हैं, तो वो टीचर क्या करता है, उसको पता है कि मुझे नहीं तो आता नहीं है, तो उसको बहुत जोर से डांटेगा, चुप रहो तुम, आगे से बात मत करना, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, है ना। अब उसको स्नैप कर दिया। अब वो टीचर के मन में एक इंटरनल वीकनेस है कि भाई इसने जो पूछा है अब मुझे कल तो पढ़ के आना पड़ेगा, तो उसको बहुत जोर से डांट देते हैं। अब इससे होता ये है कि आपकी इमेज खराब होती है, इससे अच्छी नहीं होती है। उसके मन में आता है कि यार ये जो पढ़ा रहे हैं इनको तो इन्होंने आज सही पढ़ाया नहीं है, और उस बच्चे ने उसको किसी तरह से सीखा है, तो उसकी अपनी इंटेलिजेंस है। सो समटाइम व्हाट हैपेंस, यू हैव गॉन फॉर अ मैरिज पार्टी, अब कल आपका लेक्चर है, 2-3 दिन से आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है, तो आप फिर क्या करेंगे? अगले अब 10 बजे आपका लेक्चर है, आपने पिछले 3 दिन में उस पूरे सब्जेक्ट को देखा ही नहीं है। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो जो पिछला पढ़ाया आपने उसको रिवाइज करिए, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आपने आज पढ़ा नहीं है। सो आप स्टूडेंट का इवैल्यूएशन तो पीरियडिकली करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपका इवैल्यूएशन रोज करते हैं। You are evaluated every day, so you have to be always prepared. If you are not prepared, so don't bluff. आप भी share with the students कि भाई आज मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो let us see that what we have done in the last class, and do you have any doubts or if any clarification in the past what we have gone through. तो ऐसे आप अपने उस आपको बचा सकते हैं, ना कि आप ऐसा पोज करें कि उसमें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो दैट विल बी नॉट अ करेक्ट अप्रोच. सो यू हैव टू शेयर विथ योर स्टूडेंट्स दैट व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग, एंड दैट इज अ बेटर अप्रोच rather than going for and trying to do something which for which we are not prepared.
सो एज अ टीचर यू हैव टू बिकम लिसनर ऑल्सो। उन बच्चों की बातों को समझो, सुनो, और एक बार उनको समझेंगे सुनेंगे तो आप उनकी समस्याएं भी सुन पाएंगे और उनके करेक्शन भी कर पाएंगे। देन बिलीव्स इन कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग। कोई जरूरी नहीं है कि आप अकेले ही अच्छा कर सकते हैं, आप एक टीम बनाइए, 2-3 टीचर हैं तो मिलकर भी पढ़ा सकते हैं तो बेहतर होगा, हो सकता है। कोलैबोरेशन करिए, नेटवर्किंग करिए, बीच बीच में कोई बाहर के अच्छे टीचर को बुलाइए ताकि बच्चे मोटिवेट हों। एक ही व्यक्ति से सुनते सुनते वो पूरी तरह से बोर हो जाते हैं। तो you have to bring some change, you have to bring some new person, some collaboration, some networking and adaptable to the given circumstances। तो जो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस मैंने एक एग्जांपल आपको बताया उसमें अडाप्ट करना है आपको कि आज क्या किया जाए, आज किस तरह से मैनेज किया जाए। तो समटाइम यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। देन ही और सी इज एंगेजिंग। आपको एंगेज रखना है और एंगेज रहना है, खुद भी एंगेज रहना है और दूसरों को भी एंगेज करना है। स्टूडेंट्स को खासकर आपके साथ जोड़े रखना है ताकि वो जुड़े रहें और आप भी कुछ ना कुछ उनके साथ साथ आप आगे बढ़ते रहें। He or she must have empathy, putting the last first. You have to have some empathy. Empathy का मैंने मतलब समझाया था, putting yourself in one situations. अपने आप को उसके जगह पर रख के देखो कि भाई क्या नजर आता है। अगर आप इसमें विश्वास रखते हैं तो आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। And you have to keep in mind that putting the last first। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उनके लिए आपको कुछ मन में करुणा होनी चाहिए। भाई ये बच्चा बहुत ही गरीब है, पढ़ नहीं पा रहा है, इसके कारण बहुत दूसरे हो सकते हैं। He she must have some patience। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, बच्चों को सुनिए, समझिए, पेशेंस की जरूरत है। Then he she must share the practical knowledge learning from the nature and the real world। आपके पास अगर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो भी आपने सीखा है, समझा है, उसको शेयर करिए बच्चों के साथ में ताकि वो भी अच्छे ढंग से समझ पाएं और सीख पाएं। He she always prepared to share the best practices। जो रोल मॉडल की बात कर रहा था मैं आपको, वो आपको बीच बीच में कोशिश करना चाहिए। कुछ अच्छे बच्चे जो कर रहे हैं आपके फील्ड में, उनको लेके आइए और अच्छा करने की कोशिश करिए और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करिए उनके द्वारा। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करिए। एंड टीचर इज ऑलवेज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। टीचर हमेशा एक विद्यार्थी रहता है, उसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट है कि हमेशा आपको पढ़ना पड़ता है, आप अपनी पढ़ाई से कभी भी दूर नहीं रह सकते। सो वी आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। लेट अस कंक्लूड व्हाट वी हैव वांटेड टू लर्न टुडे। So students are the raw resources and they need to be nurtured होना चाहिए यहाँ पे under a better institute culture or learning environment for better personality growth of the individuals। We are talking about the holistic education or holistic development of a child। So that can only happen if you are providing better learning environment to the student, and each learner is unique in his or her behavior। So there is a diverse kind of a people, but we have to make a collective behavior of all the students and we have to create a better work culture। And there are many environmental and personal factors affecting learning, and there are different styles of the learning of all the people, and most important is the thing that you have to develop a work culture at the institute for lifelong learning। So ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें लर्निंग एनवायरनमेंट हमेशा बना रहे, जो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास में वो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके पास एक माकूल वातावरण यहाँ बना रहे, इसके लिए हमें काम करना जरूरी है। So most important, we have to learn from the nature also। Nature teaches us many things। So nature को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें हम देखते समझते हैं और हमें इसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। So if you learn from the nature, then you try to transfer to your students, and your students also become a good citizen, good human being, and वो अच्छा करें अपने लाइफ में। हमारा मकसद तो यही है। So आपके पास 2 तस्वीरें हैं इसमें। एक तस्वीर ये दिखाती है कि भाई
अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो पोलर बियर्स, जो कि सबसे बड़े इंडिकेटर हैं उस पर्टिकुलर जगह के पोलर्स पे, वो खतरे में पड़ेंगे। दूसरा एक तस्वीर है, इज अ फोटोग्राफ ऑफ द मिलेनियम। आप ये देखें, सहारा डेजर्ट में एक हाथी है और एक ये शेरनी है, एक लायनेस, उसका एक बच्चा छोटा सा। अब सहारा डेजर्ट में पूरा गर्म है पूरा इलाका, और नीचे रेत है, पूरा गर्मी है। तो इस हाथी ने क्या किया, उसके बच्चे को अपने सूंड में ले लिया और काफी बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया इसके साथ में, और इस बच्चे को बचाना उनकी प्राथमिकता थी। वहां पर ये एनिमी नहीं है। So sometimes such things is prevailing in the nature also. There is a symbiosis. Although they are enemy at some time, but there is a symbiosis and sympathy also. उस तरह एक पिक्चर ये लिया मैंने, फरवरी 2019 का पिक्चर है, एक भरतपुर बर्ड सेंचुरी। आप कभी जाने का मौका मिले तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो सुबह सुबह 7 बजे का एक पिक्चर है। आप इसमें देखिए कि कितनी चीजें वहां पर उपलब्ध है। नेचर के साथ जब आप रहते हैं सुबह सुबह, उसका फायदा क्या है। तो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू दैट अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज का फायदा सबसे बड़ा ये है कि आप नेचर के साथ थोड़ी देर बिता सकते हैं, और उससे बड़ा कोई भी चीज नहीं है। सो दैट इज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। So my dear friends, so you as a teacher, first of all you have to internalize most of the things in yourself and gradually you have to transfer to your students. तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व के अगर धनी बनेंगे तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं आपसे सीखकर अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, आपको कॉपी करेंगे। एंड यूजुअली most of the students copy their teachers, and from that point of view, this important thing is that we have to create a better learning environment for our students. Thank you.